Services of the magician Saeed Ajmal, who's been the pick of the bowler so far in this tournament with 18 wickets. Again, a good delivery from Rumman Rais, moving it away from the left-hander. And it looks like both batsmen, they have decided. That should be a boundary, unless we see a Herculean effort by the fielder. He dives, Shahzeb Hassan, but that's the first boundary. My apologies, the second boundary for Karachi Whites. The lovely timing from Asif Zakir onto his pads, using Mohammad Sami's pace. Sami has to be very careful with his line. He doesn't have protection on the boundary behind square on the onside. This time width provided and a boundary for Asif Zakir. Third one for him. That was a poor delivery from Mohammad Sami. Short and wide, and Asif Zakir is not going to spare those. It was the width, and Asif Zakir normally is really strong on the back foot. So Mohammad Sami is having a long chat with Saeed Ajmal now. I wonder what they're talking about there. I think it's a change in the fielding. As soon as Ajmal is walking back to his mark, we're seeing some change in field placements. Still one more. They can drop back onto the circle, 30-yard circle. As you see, all the fielders are standing on the edge of the circle. Free hit, up in the air. I don't think it's going to go all the way. Wasn't quite middle of the bat. And it's gone over the rope. So a boundary for Zain Abbas. So Rumman Rais under pressure here after bowling that lovely first over. Let's have a look at that one once again. Up in the Multan sky. Be at least a 1 over in this power play. This time some innovation, and that will go all the way using Bilawal Bhatti's extra pace. Asif Zakir. That's a very brave stroke against the pace bowler. But good technique by Asif Zakir. Moving towards the off stump, making some room on the onside. He didn't try to hit it too hard, he just paddled it. Find the middle of the bat. So further problems for up in the circle. And Asif Zakir is not a very strong hitter down the ground. And he has just proved me very wrong. Lovely off drive from Asif Zakir on the up. But that was a juicy half volley from Bilawal Bhatti. It was a nothing delivery, no pace in it. I just wonder, was it a slow ball? Well applauded by one of the Zain Abbas सामना कर रहे हैं. बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है, बहुत अच्छा समझदारी से खेले. कोई इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक और गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब और डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री से बाहर गेंद गई 4 रन के लिए और 50 रन भी पूरे. ज़ैन अब्बास का ये शॉट, स्वीप शॉट और फील्डर के ऊपर से ये देखिए नवाज बॉलर कैरी कर रहा है. कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा ड्राइव. फील्डर गेंद को चेज करने की कोशिश में बिल्कुल बाउंड्री के करीब मगर नाकाम और एक बड़ी अच्छी बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए बैट्समैन और इस ओवर में जो 1-2 डॉट्स खेली थी उसको कंपनसेट किया. ज़ैन अब्बास का ये खूबसूरत कवर ड्राइव है. देखिए बॉलर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और कवर में से दिया नहीं, उनको वहीं पे गेंद किया जहां वो भाग रहे थे. और आखिरकार नवाज कामयाब बोल्ड करने में कामयाब हुए. बड़ी अच्छी गेंद और जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि नवाज, असगर और अजमल की बॉलिंग बड़ी आम होगी और यहाँ पर ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हुए और इस तरह पहला नुकसान कराची वाइट्स को. ये दोबारा देखें. जोरदार हिट की कोशिश
गेंद विकेटों में और लाइन मिस कर गए और इस तरह क्लीन बोल्ड हो गए। 32 रन स्कोर किया आसिफ जाकिर ने 25 गेंदों का सामना 26 गेंदों का सामना किया और अपनी टीम के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने ज़ैन अब्बास के साथ मिलकर की है। बुनियाद उन्होंने डाल दी है। आने वाले बैट्समैन उसको असद शफीक हैं जो यहाँ से कैरी करेंगे। असद शफीक ने 68 मैचेस खेले हैं, 1566 रन बनाए हैं और 92 इनका हाईएस्ट स्कोर है। तो पब्लिक ने बड़ा रिस्पांस किया है। हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि पहली दफ़ा पीसीबी 2 शहरों में टूर्नामेंट। पाकिस्तान जिंदाबाद के प्ले कार्ड्स भी हम देख सकते हैं। पाकिस्तान के झंडे, प्ले कार्ड्स चौकों और छक्कों के। डाउन द विकेट आए, क्या स्टंप कर दिया है मेज तीसरे अंपायर की जानिब। शोजेब रजा ने इशारा कर दिया है। बड़ा अहम फैसला ये होगा और असद शफीक की बहुत बड़ी विकेट हो सकती है अगर मिलती है। असद शफीक एक लंबी हिट की कोशिश में। अब अंपायर की वर्डिक्ट का इंतजार एंड इट्स आउट। बिग विकेट। Nawaz. In the air and taken for Wad Alam this time, and the magician straight away into the egg, picking up a wicket on his second ball. So further problems for Karachi Whites. He's 20 years of age, young lad, has been a man of the match in the group stage. His team needs him to perform today. Goes for the big one. First delivery into the stands, right under the commentary box. What a start from Danish. First ball, massive hit. Was a tossed up delivery by Saeed Ajmal. Probably he was also thinking a youngster came into the bat. Let's give him some air, and look at the reply. Handsome and high, and he got the distance also. It's a good positive start for Danish. Wasim. Another chance for the keeper, and I think he nicked it. I thought he missed out on the stumping. It was a big nick. So another wicket for Saeed Ajmal. So wicket number 20 for Saeed Ajmal. This time Danish Aziz, he was moving too much in his crease. First he went down towards the leg side and then he decided to charge. Ended up too far away from the ball. And look at the excitement from Saeed Ajmal. I like his energy. But a good thing for Karachi is Tariq Haroon is back on strike now. Yeah, it was Mohammad Asghar. Was a dolly catch. Tariq Haroon straight away, and that's a massive hit. That's a biggie. That's gone into the stand. Charging against the fast bowler. Not worrying about his pace, right middle of the bat. And that ball has travelled the distance. It's a massive hit. One of the biggest hits we have seen in this T20 Cup. What a clean striker of the ball he is, Tariq Haroon. Into the night Multan sky. One step, two step. Delivered to the stands. 100 is up. In the 14th over. Go after it, but he has to make sure. And that should go all the way. Boundary for Zain Abbas, clever stroke. And I'm sure he was looking for a single, but he hit it fine enough to find the boundary. So excellent over for Karachi Whites. Let's have a look at that one. News. This time on the onside, a biggie. Tariq Haroon once again moving across towards his off stump. And a big shot over square leg boundary. And this time, Saeed Ajmal has to take that one. And look at the determination on Tariq Haroon's face. It was a good clean hit. That's massive hit. So the game is pretty. That's our PTV cameraman hard at work. And that's a family enjoying the match. Ajmal coming in for his last delivery of the third over. Charged once again by Haroon. Could this be a catch? No, it's a six. Take that. Tariq Haroon once again. This time, good use of the feet. It wasn't a half volley. But he
flat batted that one straight down. Totally changed the gears. और जिस तरह उन्होंने आके हिटिंग की है वो कितनी क्लीन हिटिंग की है, प्रेशर जो है उन्होंने ट्रांसफर किया है। जैन अब्बास को स्टंप करने की कोशिश और उसमें कामयाब। सैफुल्लाह बंगश ने एक और स्टंप किया, बाहर निकल आए थे जैन अब्बास। एक अच्छी एफर्ट उनकी खत्म हुई, वो बड़ी देर तक वो विकेट पे मौजूद रहे। एक तरफ से उन्होंने इनिंग्स को होल्ड टुगेदर रखा मगर आउट और बड़े अहम। सोहेल ने इस मरतबा गेंद को निकाल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट और गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर। 4 रन, एक वेल रन हासिल करती है। जी, हमारा जो एयर पीस है उसके जरिए कहीं से बोतलें बजने की आवाज भी आ रही है। दे देखो, वेल डन अवर कैमरामैन। ऊंचा शॉट या बैट की आवाज, लॉन्ग ऑन से बाहर। 6 रन और सोहेल खान जिसकी जरूरत थी। कोई भी टीम जीते, आखिर में क्रिकेट के खेल की जो खूबसूरती है, जो ग्रेट अनसर्टेनिटीज हैं वो जीतेंगी। 18वें ओवर का आगाज और लॉफ्ट किया और भरपूर लॉफ्ट किया, स्ट्रेंथ में एक और छक्का। ये तारिक हारून की स्ट्रेंथ है, उनकी जो उनके हिटिंग जोन में जो बॉल आता है तो वो फिर कोई उसको बाउंड्री लाइन से बाहर जाने से नहीं बचा सकता। और ये तारिक हारून ने बैक ऑफ लेंथ बॉल इंतजार किया, जिसको कहते हैं स्लैप, चपाटा मारा जिसको कहा जाता है। ग्रेट डिस्ट्रप्शन बाय अजहर खान, ही इज ऑन फायर एज वेल। बिल्कुल स्लैप, पैश, बिफ्ट। He has a gone again, फील्डर नीचे, बिग विकेट। आउट करने में कामयाब हुए असगर, बड़ा अच्छा कमबैक। एक और ट्विस्ट एंड टर्न मुकाबले में, तारिक हारून आउट। जी, टाइमिंग जो थी वो प्रॉपरली बल्ले पर बॉल नहीं आया और ये समझ रहे थे कि ये बॉल भी बाउंड्री से बाहर जाएगा, मगर बहुत ही अच्छा कैच, वेल जज कैच, तेज बॉल किया हुआ था असगर ने। टाइमिंग नहीं थी उसमें, मौका नहीं मिला उन्हें कि बॉल के नीचे आकर वो क्राउड में फेंके और मिस हिट हुई। और इस तरह असगर का फातिहाना अंदाज और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लेकर उन्होंने गेम को दोबारा उजागर कर दिया कराची ब्लूज के नुक्ते नजर से। बिल्कुल आपने सही कहा और यही क्रिकेट की खूबसूरती है। अगर आगे बॉल होने की वजह से और थोड़ा सा तेज होने की वजह से अपनी टाइमिंग पर पूरा बूर हासिल नहीं कर सके और इस तरह असगर ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली। अच्छा स्ट्रोक सोहेल खान का, बैक किया, आखिरी गेंद पर एक और चौका। अभी भी मैच ऑन है। 12 तो सामने मारे। हसन ने गेंद को हिट किया, गैप में हिट किया, बड़ा खूबसूरत शॉट। ठीक उस मौके पर जब चौका चाहिए था, हसन चौका लगाने में कामयाब और सोहेल के साथ उन्होंने जिसे कहते हैं जरूरत। रोमान रईस चले, सोहेल ने बैक किया, फील्डर गेंद को सिर्फ देख सकते हैं, गेंद क्राउड में आकर गिरी। एक और छक्का सोहेल खान का, जबरदस्त छक्का। और एक चीज उन्होंने आज प्रूव कर दी है कि वो पाकिस्तान के एक अच्छे ऑलराउंडर भी बन सकते हैं। 10 बॉलों में 24 स्लो बॉल, बैक ऑफ लेंथ और बैक ऑफ हैंड से बॉल किया, बहुत ही मुताबिक किया सोहेल ने इस स्लो बॉल को। और मोहम्मद वसीम विद हामिद रिवर्स खेले, अच्छा खेले और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। 4 रन, 5 गेंदें 7 रन चाहिए। व्हाट अ शॉट, किस तरह प्लान किया उन्होंने इस बॉल को। नवाज के इस बॉल को जो कि वो समझ रहे थे कि ऑफ स्टंप से बाहर करेंगे, अपनी इम्प्रोवाइजेशन का जबरदस्त उन्होंने आज यहाँ पर जौहर दिखाए हैं और बहुत ही पहले बॉल पर 4 रन हासिल करके नवाज पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया। डील किया था और बहुत ज्यादा शफल करके ऑफ स्टंप पर गए थे। 4 गेंदें 7 रन, स्टिल ऑन। विकेट कीपर स्टंप्स के ऊपर, नवाज दौड़ते हुए आए, एक और ट्विस्ट, एक और टर्न मुकाबले में। चौका खाने के बाद जबरदस्त कमबैक नवाज का, डॉट डिलीवरी एंड अ विकेट। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट और एक बॉल जो डॉट किया है, जो आउट किया है, वो मैं समझता हूँ बहुत ही कीमती बॉल है। विद इन द स्टंप्स विकेट टू विकेट बॉल किया, बहुत आगे। विल गो डाउन टू द लास्ट बॉल। यकीनन आखिरी बॉल तक ये मुकाबला अब जाता हुआ नजर आ रहा है।
स्ट्राइक लेने के लिए आजम तैयार। नवाज चौका खाने के बाद बड़ा उम्दा कमबैक उन्होंने किया है। तारिक हारून, वरीड मैन, फराज, दूसरे लोग खड़े हुए हैं डग आउट में, सामना करने के लिए तैयार। यहाँ पर आजम अपनी फील्ड को अब तक देख रहे हैं। लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट बाउंड्री पे, और उन्होंने खूबसूरत स्ट्रोक खेला। फील्डर गेंद तक पहुंच रहे हैं, एक रन बना, दूसरे के लिए मुड़ना चाहते हैं, मुड़े और 2 रन मुकम्मल करने में कामयाब। 2 गेंदें 5 रन नजर। इट्स गेटिंग वेरी वेरी टफ। और आप ये देखें कि जो ये अपील था, वाइट की अपील की थी, बैट्समैन ने भी देखा था अंपायर की तरफ, मगर उन्होंने ये देखें जिससे कहते हैं ना स्विच हिटिंग, तो उन्होंने बिल्कुल अपनी जगह छोड़कर ऑफ स्टंप से बहुत बाहर आ गए। इसलिए मैं भी कि अंपायर ने बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बॉलर को दिया। 2 गेंदें 5 रन। नवाज तैयार, विकेट कीपर सैफुल्लाह स्टंप्स के ऊपर। अब तक फील्डिंग में तब्दीलियां, कवर को थोड़ा और कवर पॉइंट की जानिब की, बल्कि पॉइंट पे कर दिया गया, और वहां पे दूसरे फील्डर चले गए हैं कवर में, और एक शॉर्ट थर्ड मैन वहां पे सईद अजमल, शॉर्ट फाइन लेग पे फवाद आलम, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मुसलसल बाउंड्री पे एंड डीप पॉइंट। 2 गेंदें 5 रन। और इस मरतबा अपील और उंगली फजा में बुलंद। नवाज एक और विकेट लेने में कामयाब, और अब एक और विकेट गिर गई है। आखिरी गेंद पे 5 रन चाहिए। एक और बहुत ही उम्दा विकेट नवाज की, फुल पिच बॉल किया। उनके जहन में था कि आजम हुसैन अक्रॉस द लाइन इसको खेलेंगे, ये दे, और बॉल बिल्कुल मिडिल स्टंप को हिट कर रहा था। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन था एहसन रजा के लिए, और इस तरह इस ओवर में दूसरी कामयाबी मोहम्मद नवाज की। और ऐसे मौके पर जबकि ये 2 विकेटें जो थी 2 डॉट बॉल भी हो गए, और इससे प्रेशर दोबारा कराची वाइट्स के ऊपर आ गया। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। इन 2 गेंदों पे 2 सिंगल ही बने होते, या स्ट्राइक सोहेल को मिली होती तो शायद इस वक्त जो है वो सूरत हाल कुछ और होती। असद शफीक बड़े परेशान, और उनके तमाम साथी, और मीर हमजा बैटिंग करने के लिए आए हैं। चौका लगता है तो मैच टाई होगा, फिर सुपर ओवर होगा। 6 की इनकी एवरेज है, 46 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट। छक्का लगता है तो ये जीतेंगे, और 5 रन अगर बनते हैं फिर भी ये जीतेंगे। अब देखते हैं कि होता क्या है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और मैं समझता हूं कि इस वक्त द रब ऑफ द ग्रीन इज विद कराची ब्लूज, और अमीर हमजा इतने अच्छे बैट्समैन नहीं नजर आते, बहुत प्रेशर में हो गए। एक बॉल है, और अगर वो चौका भी मार देते हैं तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा कारनामा ये करेंगे, और अगर छक्का मार देते हैं तो फिर आपको शारजा का छक्का जावेद मियांदाद का याद आ जाएगा। जी हाँ, सईद अनवर और आसिफ मुस्तफा का छक्का भी याद आएगा, लेकिन सबसे पॉपुलर जावेद मियांदाद का छक्का। स्विंग करने में कामयाब हुए बैट को कराची वाइट्स केप्ट देयर नर्व्स। नवाज ने चौका पहली गेंद पे खाने के बाद शानदार कमबैक किया। कांग्रेचुलेशंस कराची ब्लू, और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला कराची ब्लूज ने जीता, और कराची वाइट्स की टीम तमाम तर एफर्ट के बावजूद जो है वो शॉर्ट रह गई 3 रन से, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान हुआ। जितनी तारीफ करें दोनों टीमों की वो कम है, लेकिन एट द एंड जाहिर सी बात है कि कराची ब्लूज आर द विनर। बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ज़बरदस्त मैच, एंड ऑल क्रेडिट टू बोथ द कराची टीम्स। दे प्लेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट, और मैं समझता हूं कि आज क्रिकेट की जीत जो है वो यहाँ पर मुल्तान स्टेडियम में हुई, और ये फायरवर्क्स जो है उसका आगाज हो चुका है, और कराची ब्लूज के खिलाड़ी सेलिब्रेशंस में मोहम्मद नवाज को गले लगाते हुए, और इतना आउटस्टैंडिंग ओवर मोहम्मद नवाज ने किया। और ये जो फायरवर्क्स आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसकी सेलिब्रेशन इस T20 के इख्तिताम की। Look at the fireworks. A
मैसिव फायरवर्क, देयर वी गो। जबरदस्त माहौल, जबरदस्त एटमॉस्फेयर, मुल्तान का क्रिकेट स्टेडियम भरा रहा तमाम मैच में और भरपूर उन्होंने एंजॉय किया और दोनों टीमों ने भरपूर एंटरटेन किया उन्हें अपने उम्दा खेल से। और इस मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पे हुआ जब कराची ब्लूज की टीम 3 रन से फाते हुई। जितनी तारीफ करें दोनों टीमों की वो कम है। व्हाट ए ट्रेमेंडस इवेंट इट हैज बीन एंड व्हाट ए टेरिफिक फाइनल इट हैज बीन। जितनी तारीफ करें दोनों टीमों की वो कम है। 182 रन स्कोर किए कराची ब्लूज ने एंड दे फेल शॉर्ट बाय 3 रन एट द एंड, जब 179 रन उन्होंने स्कोर किए। और मोहम्मद नवाज ने बड़ा शानदार आखिरी ओवर किया। एक मौके पे पहली गेंद पे उनको चौका लगा दिया था हसन ने और उसके बाद कहीं ना कहीं गलत डिसीजन दोनों बैट्समैनों का, हसन का भी और उनके हाथ बाद आने वाले का भी, और सोहेल आखिरी ओवर में स्ट्राइक पे नहीं आ पाया। जी बहुत बड़ा ये सेटबैक रहा कराची वाइट्स के लिए। तो उनका जो मेन स्ट्राइकर था सोहेल खान, जिन्होंने इस गेम में इनको वापस लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उनको मौका नहीं मिला कि जो 6 बॉलों में 11 रन करने थे तो उसको वो खेलते। आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त फाइनल हुआ है। बड़ी देर के बाद लोगों को इतनी दिलचस्प और इतनी सनसनीखेज क्रिकेट जो है वो देखने को मिली है। और आई थिंक क्रिकेट की जीत हुई है। लोगों ने कितना इसको एंजॉय किया होगा। हमारे देखने वाले जो पीटीवी स्पोर्ट्स पर हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, दे मस्ट हैव एंजॉयड इट थॉरली। दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम ऑफ क्रिकेट। और आपकी स्क्रीन पर कराची ब्लूज की टीम सेलिब्रेशंस करती हुई, जीत का जश्न मनाती हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खेल हुआ और फाइनल जो है उसको बहुत Let's have some quick chat of Jazz National T20 Cup 2016.